रिज्यूमे में एज अ फ्रेशर बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि बहुत ही एकदम हाई लेवल का प्रोजेक्ट डाला हो, बट अच्छा टेक स्टैक वाला प्रोजेक्ट डालो और ऐसा प्रोजेक्ट तुमको आता हो। पे मत ऐसा शो ऑफ करने के चक्कर में तुम बहुत बड़ा कुछ प्रोजेक्ट डाल दो और फिर तुम उसे जस्टिफाई ना कर पाओ, वो करने की कोई नीड नहीं है, राइट? तो उन्होंने जो टेस्ट केस दिया होता है, कॉपी पेस्ट करते हैं वो गूगल डॉक या कुछ भी, हम्म वो टेस्ट केस तो मैंने रन करके दिखाया ही। उसके अलावा मैंने खुद से एक एज केस खुद बनाया और वो भी रन करके दिखाया कि ये भी चल ही जाएगा। सो यू कैन गेट ब्राउनी पॉइंट्स अगर वो रिक्रूटर सॉरी मतलब इंटरव्यूअर पूछे बिना ही अगर आप एक्स्ट्रा एज केस चला दो, सो आपकी इंप्रेशन और बेटर हो जाएगी। तो ये मैंने किया था। So, hi everyone. Today we have a special guest on our channel. We have Dhruvil with us. So, Dhruvil, would you like to introduce yourself? Yes, sure. So I'm Dhruval Hirpara, and I'm originally from Surat, Gujarat, and I completed my BTech in Computer Science from Delhi Technological University, and I'm a Hmm. 2024 pass out. And throughout my course of 4 years, I took part in multiple hackathons and also emerged out as the winner and All India Rank 1 team in the JP Morgan Chase Code for Good hackathon in 2000. Yes. I could not secure the internship at that time, but it didn't matter. But hackathon जीत लिया था. Hackathon जीत लिया था, yes. So after that, I Hmm. also took part in many other hackathons. Like I also took part in the Amazon Hackon, which occurred in December 2023. So Hmm. secured a 6 month internship because, like, based on Hmm. performance in that hackathon. And presently, I have joined. Like I had two offers, one on-campus offer from Air India, and then I cracked an off-campus offer from CultFit. And presently, I Hmm. I have joined CultFit as a software engineer. And yes, Hmm. that's about me. Yes. So, like he mentioned, he has cracked Gulfit off campus crack कर रखा है. So, we'll be getting to know about his entire journey, कि how he cracked, what was his placement preparation journey, and the interview experience. So, Dhruvil, start us off with your interview experience. What all happened? How was it? So in total, there were 3 rounds. The first two rounds Mm-hmm. were DSA based, and the final round was like a company fit plus resume based round. So let's हाँ. talk about each round one by one. तो जो पहला round था ना DSA round, वो simple जो standard रहता, it was around I think 45 minutes or 60 minutes. I don't remember the Hmm. exact time, but वही था, दो questions दिए थे DSA के and you have to clear it. And first question was, yes I remember, first question was around greedy, मतलब एक array दिया था Mm-hmm. एंड मैक्सिमाइज करना था कुछ आई थिंक टाइम, मतलब वो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे एंड हाँ हाँ हाँ. करना था। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता बट इट वाज समथिंग अराउंड इट। तो अगर आपने थोड़े ग्रीडी के क्वेश्चंस किए हो, यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड Hmm. आई थिंक डायरेक्टली फ्रॉम लीड कोड ओनली, बट नॉट सो पॉपुलर ऑन लीड कोड, सो इट वाज मीडियम लेवल ऑन Hmm. लीड कोड। एंड आई टुक अराउंड 15 to 20 मिनट्स एकदम स्क्रैच से पहले, Hmm. एकदम Brute force से. ब्रूट फोर्स से लेके फिर ग्रीडी। डीपी Hmm. से भी कर सकते बिकॉज एवरी क्वेश्चन ऑफ ग्रीडी कैन बी सॉल्व यूजिंग डीपी। क्या solve with DP? Yes. Also told that you can do it Hmm. using greedy. It can be done easily. So I Hmm. explained the greedy approach, and when he was satisfied with the approach and the complexities which I mentioned, then we went on to coding it. फिर आराम से मैंने टाइम लेके कोड किया, फिर थोड़ा टेस्ट Hmm. केस दिए, वो रन किया। मतलब उन्होंने रन करवाया था अपना जो प्रॉपर कंपाइलर नहीं था, बट ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं ना, अपना ऑनलाइन आईडीज, Hmm. Yeah. Yes. Yes. हाँ, उस पे वो टेस्ट केस बोलते हैं और रन करना था। सो और ये Hmm. मतलब फर्स्ट राउंड में 2 क्वेश्चन थे, सेकंड में भी 2 क्वेश्चन थे। चारों बार ये ऐसे अच्छे से रन करके दिखाना था, तो वो तो कर लिया। Hmm. फिर जो सेकंड क्वेश्चन था फर्स्ट राउंड का, इट वाज अराउंड बाइनरी सर्च। तो वो Hmm. भी बाइनरी सर्च का ऐसा था कि आप पहले एक बार एकदम से देखो ना, यू वुड थिंक कि यार ये ग्रीडी का हो सकता है, डीपी का हो सकता है, बट थोड़ा अगर आपने Confusing. हाँ. कंफ्यूजिंग था। तो रेटेड Hmm. वो भी लीड कोड का ही था, इट वाज रेटेड मीडियम, बट पर्सनली आई थिंक उसको मीडियम हार्ड के बीच रख सकते हो रैंक का। Yeah. हाँ, तो वो भी अच्छे से पहले मैंने वर्स्ट केस वगैरह मतलब पूरा मैंने एक्सप्लोर किया कि ईडी Hmm. इस पे क्यों नहीं चल सकता वगैरह, पूरा एक्सप्लेन किया और फिर बताया कि बाइनरी सर्च से हो। Hmm. वेंट Yes. ऑन टू कोड द क्वेश्चन। Hmm. First round ये हुआ। So after the first round ended, after 2 days only the second round started. And second round Hmm. में भी it was purely DSA based problem solving round. इसमें भी 2 DSA questions पूछे थे। And Hmm. coincidentally इस बार भी वही 2 टॉपिक्स पे पूछे थे। इस बार was first Greedy. is what it was on binary search on answer। वो जो होता है ना मिनिमम Hmm. ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, इसमें से हाँ. एक Yes. concept था। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपने किया हो अग्रेसिव काउस करके, काफी फेमस क्वेश्चन है, आप साइबर Hmm. Yes. कहीं शीट में देखोगे ना तो होता ही है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन किया हो ना, आप ये क्वेश्चन आराम से कर दोगे। ये भी वो वाला क्वेश्चन है
कि आपको दिखेगा नहीं कि एग्ज़ैक्ट हुँ। ये है बाइनरी सर्च। अगर आपने लीड कोड अच्छे से प्रैक्टिस की हो ना, मतलब लीड कोड मेरे को लगता है 500 क्वेश्चंस अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए। हुँ, हो ना, इम्पोर्टेंट। तो आराम से आपको दिख जाएगा कि हाँ, यही है। फिर ऑब्वियसली इस बार ही थोड़ा एक्साइटमेंट में ना मैंने सीधा ही वो बेस्ट केस सॉल्यूशन हाँ, बता दिया, क्योंकि वो एकदम पता है वो अंदर से एक्साइटमेंट आती है ना कि देख के हो जाता है कि सॉल्व हो गया। ऐसे हाँ। करके। तो हुँ। पहले इस बारी मैंने क्या किया, बेस्ट केस बता दिया, फिर ब्रूट फोर्स में उल्टा करके बताया कि वर्स्ट केस ऐसे बाइनरी सर्च। तो उसने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, तुमने बेस्ट केस बता तो दिया, बट हाँ थोड़ा वहां पे हो गया। फिर ये कोड कर हाँ। दिया मैंने, फिर वी वेंट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इट वाज ऑन ग्रीडी। हुँ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सा था, बट ग्रीडी था आई एम श्योर, और ये भी ऑप्टिमाइजेशन वाला ही था। हुँ, ऑप्टिमाइजेशन वाला हुँ, कुछ एक पैरामीटर ऑप्टिमाइज करना था, और ये भी ग्रीडी से हो रहा था। तो फिर से मैंने वही समझा हुँ, कि डीपी से भी हो सकता है, बिकॉज़ एवरी ग्रीडी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग डीपी, बट डीपी। उल्टा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। हाँ, यस। तो मैंने अच्छे से पूरा समझा कि डीपी से ऐसे कर सकते हैं, बट मोर ऑप्टिमाइज्ड इज़ दिस ग्रीडी वन। तो फिर ग्रीडी वाला अच्छे से मैंने समझाया और फिर कोड किया। एंड ये वाला सेकंड राउंड जो है ना, वो मेरा जल्दी खत्म हो गया था। आई थिंक एंड में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा बचते थे, तो उन्होंने फिर ऐसे डिस्कशन कर लिया कि यार हुँ, सेल्फ अबाउट प्रोजेक्ट्स इन योर रिज्यूमे। वैसे वो ज़रूरत नहीं थी, बट बिकॉज़ वी हैड एक्स्ट्रा टाइम तो टाइम बच गया। right. So this was about the first two rounds. So like after I got the offer, the recruiter also told me like the first my performance in the first two rounds was really good because I passed all the test cases, and that too in the given time limit. तो उसकी वजह से काफी हुँ, एक्सपेक्टेशन हुआ था। और मोर इम्पोर्टेंटली जो मैं टिप देना चाहूंगा, जब मैं क्वेश्चन कर रहा था ना डीएसए वाला, तो उन्होंने जो टेस्ट केस दिया होता है कॉपी पेस्ट करते हैं वो गूगल डॉक या कुछ, हुँ, वो टेस्ट केस तो मैंने रन करके दिखाया ही। उसके अलावा मैंने खुद से एक एज केस खुद बनाया, और वो भी रन करके हुँ, दिखाया कि ये भी चल ही जाएगा। सो यू कैन गेट ब्राउनी पॉइंट्स अगर वो रिक्रूटर सॉरी मतलब इंटरव्यूअर पूछे बिना ही अगर आप एक्स्ट्रा एज केस चला दो, सो आपकी इंप्रेशन और बेटर हो जाएगी। तो ये मैंने किया था, तो आपको भी करना चाहिए। अगर हुँ। आपको श्योर हो कि चलेगा ही चलेगा कोड, अगर आपको हल्का भी डाउट है तो मत बोलो, तो उन्होंने जो बोला है उस हिसाब से करते जाओ। बट या यहाँ बात था हाँ, कि सही है, तो मैंने चला के दिखा दिया एक और एक्स्ट्रा केस। और ये था फर्स्ट टू राउंड्स। एंड हुँ, आफ्टर सम टाइम, मतलब इसमें ऐसा हुआ था कि जो मेरी पोजीशन थी ना, इंजीनियरिंग मैनेजर टोल्ड द रिक्रूटर कि अब शायद जरूरत नहीं है। सो माय प्रोसेस वेंट ऑन होल्ड। ऑफ कैंपस तो थोड़ा चलता था। अच्छा, एंड आफ्टर हाँ, आफ्टर 2 months, yes, after 2 months, the recruiter called me again and she said like, are you still available, do you want to join? तो मैंने बोला यस, द थर्ड राउंड। तो फिर हुआ थर्ड राउंड, और इसमें फिर से मैंने बोला था ना, इस थर्ड राउंड वाज ऑल अबाउट योर रिज्यूमे एज वेल एज योर हुँ, लाइक आर यू लाइक योर पर्सनालिटी, आर यू गुड फिट फॉर द कंपनी और नॉट। कल्चर फिट। हाँ, सो इट स्टार्टेड विथ माय रिज्यूमे। तो उन्होंने पूरा रिज्यूमे से अच्छे से मतलब, इसमें देखो सिंपल टिप बोलता हूँ, रिज्यूमे में एज अ फ्रेशर बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही एकदम हाई लेवल का प्रोजेक्ट डाला हो, बट अच्छा टेक स्टैक वाला प्रोजेक्ट डालो, और ऐसा प्रोजेक्ट तुमको आता हो। ये मत ऐसा शो ऑफ करने के चक्कर में तुम बहुत बड़ा कुछ प्रोजेक्ट डाल दो और फिर तुम उसे जस्टिफाई ना कर पाओ, वो करने की कोई नीड नहीं है, राइट? तुम पहुँच गए हो ना उस हुँ, राउंड में, फिर बेमतलब बढ़ा-चढ़ा के क्या ज़रूरत है? तो भाई आता हुँ, है उस लेवल का डालो प्रोजेक्ट। और नहीं हुँ। और जो कुछ भी अगर तुमने चलो झूठ-वूठ टाल रखा है वर्स्ट केस में, जो टाइम मिलता है उसमें अच्छे से वो प्रोजेक्ट बना पढ़ के लो। लिख लो, वर्स्ट केस में। अब हुँ, हाँ, तो मैंने जो पास्ट हैकेथॉन प्रोजेक्ट्स कर रखे थे, वही डाल रखे थे, तो मेरे को तो अच्छे से आता था क्या कैसे रहता है। सो उन्होंने इन डेप्थ हुँ, क्वेश्चन ऐसे पूछे कि अगर तुमने खुद कर रखा हो ना, तो ही तुम बता पाओगे कि हाँ, ये सही है। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, हुँ, वो मेरा जो प्रोजेक्ट था उसमें डेटाबेस मोंगोडीबी का था। तो मोंगोडीबी के हुँ, मॉडल्स कौन से थे? फिर उस मॉडल के अंदर तुमने ऐसे कैसे कैटेगराइज़ किया था कि भाई की वैल्यू कितनी है, नेम क्या है, पूरा टाइप जो होता है ना, स्ट्रिंग है या क्या नंबर है वगैरह, हाँ, हाँ, हाँ। डेप्थ गए थे वो। तो वो अगर तुमने कर रखा हो तो ही आएगा ना, मतलब तुम अगर 10 सेकंड का पॉज़ ले लो, 20 सेकंड का सोच के बोलो, फिर ऑल्सो नो कि या यू आर नहीं हो पाएगा, यस। तुमने बना रखा हो तो तुरंत ही बता दोगे। सो या हुँ, अबाउट द फर्स्ट राउंड, तो 15 टू 20 मिनट्स पूरा प्रोजेक्ट चला। फ्रंट एंड मेरा फुल स्टैक का था, मर्न का। हुँ, रिएक्ट की चीज़ें पूछी, फिर इन डेप्थ वो बैक एंड की चीज़ें पूछी। तो ऐसे हुँ, फिर इन द लास्ट फ्यू मिनट्स इट वाज़ अ 30 मिनट्स राउंड। सो या वहाँ पे फिर एक टॉपिक था ना, उसपे
हमारी वो थोड़ा वो था कि उनके हिसाब से अलग तरीका था और मेरे हिसाब से अलग तरीका था। तो बट मैंने जैसे किया था वो मैंने बता दिया। सो ही वाज़ नॉट सैटिस्फाइड, ही सेड यू कुड हैव डन इट बेटर इन दिस वे। आई सेड ओके, श्योर, डेफिनिटली आई विल डू हुँ। इट आफ्टर द इंटरव्यू, क्योंकि हो सकता है कि भाई उनका ही सही हो, मेरा गलत हो। तो उस टाइम पे भी हाँ, मेरा भी लड़ना नहीं है। हाँ, तो मैंने बोल दिया ओके, आई विल लुक इंटू इट आफ्टर द इंटरव्यू। फिर वो हो गया। हुँ, एंड देन वी वेंट ऑन टू लाइक द फाइनल 5 टू 5 मिनट्स। तो वो पूरा चला कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन कल्ट फिट। फिर मैंने बोला कि इसलिए जॉइन करना है। देन ही वेंट, ये तो चलो हो गया, बट एनी स्पेसिफिक रीजन कि क्यों यही जॉइन करना है ऐसा। तो फिर रिलेटेड बताया कि मैंने खुद यूज किया था वगैरह करके, मेरे को यूआई का हुँ, कंपनी गोल अच्छा है। फिर थोड़ी ना कंपनी बैक रिसर्च करके जाना अच्छा रहता है। तो मैंने बोल दिया कि जो मुकेश बंसल सर है सीईओ, उन्होंने मिंत्रा भी को फाउंड की है, फिर अभी एज एन एंजल इन्वेस्टर वो ग्रो में भी फाउंडर है। तो उनका जो इतना स्टार्टअप वगैरह एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उनके अराउंड जो लोग हैं उनके बारे में मैंने तारीफ सुनी है। और जो कंपनी कल्चर है वो भी काफी अच्छा है कि टेक स्टैक अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। हुँ, दैट्स व्हाई आई थिंक इट वुड बी अ राइट चॉइस फॉर मी टू जॉइन जस्ट आफ्टर कॉलेज। तो उससे थोड़ा वो सेटिस्फाइड थे। उसने बोला, फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा जो कॉम्पिटिटिव ऑफर है उसका क्या कंपनसेशन है। तो वो गुड़गांव में था एक्चुअली, एयर इंडिया का ऑफर। ही हुँ, वाज आस्किंग कि आप रेडी हो गुड़गांव की जगह बैंगलोर आने में। मैंने बोला यस, आई हैव अ हुँ, लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर, लाइक आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कल्चर ऑफ द सिटी, द स्टार्टअप कल्चर एंड एवरीथिंग। सो यस, आई लुक फॉरवर्ड टू जॉइनिंग हुँ। द सिटी, लाइक जॉइनिंग कल्फिट। तो उसने बोला ओके, वी विल गेट बैक टू यू। तो फिर हुआ वो इंटरव्यू खत्म, और 1-2 दिन में, हाँ, 1-2 दिन में ही रिक्रूटर का कॉल आ गया था कि यस यू आर सिलेक्टेड। और फिर आगे की प्रोसेस हो गई। हाँ, तो लाइक यू हैव मेंशन्ड यू हैव आल्सो डन हैकाथॉन्स एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह भी यू हैव मेड अच्छे से एंड डीएसए के भी सारे प्रॉब्लम्स यू वर एबल टू डू इन द इंटरव्यू तो मतलब यू हैव आल्सो बैलेंस्ड डीएसए अलोंग विद हैकाथॉन्स एंड ऑल. यस, So how was your preparation journey? How did you, do DSA, hackathons, all these यस, things? यस। तो एज़ वी ऑल नो, देखो मेन तो ये 3, जैसे मेरा ऑन कैंपस था, तो ऑन कैंपस बाकी चीज़ें तो साइड रखो, सीजीपीए से इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। है ही जैसे नहीं. मेरी सीजीपीए बेटर होती तो ऑन कैंपस ही मेरी एयर इंडिया से बेटर जॉब होती। तो वो थोड़ा मेरे हुँ, को था कि थोड़ा सीजीपीए के मामले में बुरी नहीं थी मेरी, बट ऐसा था कि हुँ, ऑनलाइन में ना सबकी ही बहुत ज़्यादा आ गई थी। जैसे मेरी हाँ. सीज़न था ना, आई थिंक 9.2 9.18 ऐसे कुछ थी एग्रीगेट। तो वैसे तो कोई सुनेगा तो लगेगा बहुत अच्छी है, बट ऑनलाइन में सबकी आ रखी है एग्रीगेट 9.4 9.5, हुँ, तो वैसे कम रह गई थी। सो आई वुड से हुँ, एग्ज़ैक्ट अमाउंट की से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जो भी है, जैसा भी चल रहा है उसमें टॉप ब्रैकेट में आने की ट्राई करो, फिर तो तुम्हारा आराम हुँ, से हो जाएगा। तो क्योंकि फिर सबके क्वेश्चन होते हैं, हो जाते हैं अगर, तो सेकंड ब्रैकेट यही लगाता है कि सीजीपीए किसके आए हैं उसको इंटरव्यू दो। एग्ज़ैक्टली. इतना इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू क्लियर हुँ, करने के लिए डीएसए लेवल वाली चीज़ें सबको आती ही है, राइट? तो ये हुँ, सीजीपीए अच्छी रखो, फिर जो डीएसए और जो अपने प्रोजेक्ट्स, देखो 3 होते हैं, सीजीपीए बात कर ली, फिर होता है डीएसए, फिर रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स और अपने कोर सीएस, मतलब डीबीएमएस, ओएस, हुँ, सीएन, थोड़ा मेन तो डीबीएमएस, ओएस ऊप्स होता है, सीएन थोड़ा बहुत। हुँ, तो जो डीएसए था, मतलब मैंने प्रॉपर ऐसे किया था, मतलब एक ऑनलाइन कोर्स लिया था, तो उससे नॉर्मली पहले सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिया। फिर मेरे को अंडरस्टैंडिंग आ गई थी क्या कैसे रहता है डीएसए। फिर हुँ, डायरेक्टली जम गया अपनी स्ट्राइवर की शीट पे ही, जो हाँ. नई वाली आई थी ई टू जेड करके। तो हुँ, हुँ, से हुँ, कंप्लीट किया, आई थिंक उसमें भी 480 थे। और उन्होंने लिंक दे ही रखा है प्रॉपर क्वेश्चंस का, लीड कोड या दूसरे वीडियोज़ का. हाँ, तो वहाँ से कर कर के अराउंड जितने भी थे मैक्सिमम मैंने कर डाले थे। बीच-बीच में छोड़े भी थे, मैंने थॉट कि चलो ये तो ऑलमोस्ट ही सेम है, बट आपके पास टाइम हो तो आपको सारे ही करने चाहिए। फिर जब ये मैंने पहले कर रखा था, फिर जब प्रॉपर हमारा प्लेसमेंट सीज़न आया, तो तब ऑब्वियसली बहुत टाइम नहीं रहता, 1-2 मंथ ही रहते हैं। हुँ, तब मैंने 180 वाली जो शीट थी, वो इंटरव्यू टॉप क्वेश्चंस 180 ऐसे करके भी एक और है, तो वो पूरी उसके सारे के सारे अच्छे से कर लिए, कि उसमें फिर ऐसे ऐसे नहीं रटे नहीं थे कि कौ हुँ, और मैंने अलग से अपनी एक स्प्रेडशीट मेंटेन की थी। उसमें क्या करता था, स्ट्राइवर की शीट वाला पूरा कॉपी था, लिंक्स, और राइट साइड क्वेश्चन नेम और फिर टॉपिक, ऐसे करके। और एक और कॉलम था कि उस टॉपिक में मेरे को कहाँ पे दिक्कत हुई। तो ऐसे करके पूरा मैंने मेंटेन हुँ, किया था। तो एक बार ही पूरे क्वेश्चन्स किए, फिर जो जहाँ दिक्कत हुई थी और मैंने पॉइंट लिख रखे थे, उस पे वर्क किया। सो ऑलमोस्ट लाइक 2 टाइम वो पूरा किया था। तो जितने भी हुँ, होता है, वहाँ वहाँ पे मेरे रिवाइज़ हो गए थे प्यार से। और तुम जैसे कोई क्वेश्चन हुँ, करो एज़ अ टिप, तो मेरे को लगा कि इसमें ये नई चीज़ मैंने सीखी, तो उसको मैं 3-4 वर्ड्स में या 1 सेंटेंस में उस हुँ, नोट बना लो, यस. तो वो तुम पहले वापस देखो तो तुमको याद आ जाए कि हाँ यार, ये तो था कुछ अलग।
तो ये काफ़ी हेल्प। हुँ, बाकी ऑनेस्टली तो हुँ, नेक्स्ट जैसे प्रोजेक्ट आता है तो मेरा तो बिकॉज़ ऑफ हैकाथॉन्स प्रोजेक्ट बन गए थे, कवर हो जाते हैं, यस। कि हैकाथॉन्स करो तो आराम से प्रोजेक्ट्स बन ही जाएँगे, अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। बाकी ये तो हुँ, कुछ अपने इंटरेस्ट का बना लो यार, ऐसे ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता कि भई तुमने ऐप किया कि वेब किया कि एमएल, तीनों में से कुछ भी पकड़ो बट अच्छे से कर लो। एज़ अ फ्रेशर तो को हुँ, इसमें से कोई एक भी स्किल अच्छे से आती हो ना, तुमको लग ही जाएगी, कहीं न कहीं। तो ये फिर हुँ, इसके अलावा कमिंग बैक टू द फाइनल थिंग कोर सब्जेक्ट्स, तो ऑनेस्टली बताऊँ तो जो मेरा 4th सेमेस्टर था, तो हमारा ऐसा था कि पहले 3 सेमेस्टर पूरे ऑनलाइन निकले और 4th हुँ, उसके फर्स्ट 1 एंड हाफ मंथ ऑनलाइन, 2.5 मंथ्स फिर ऑफलाइन। तो वो थोड़ा हम वियर्ड हाँ, सा था, तो तब भी ना अच्छे से मैं कर नहीं पाया था क्योंकि अभी नया-नया कॉलेज आया हूँ और तुरंत ही प्लेसमेंट से सीज़न स्टार्ट हो रहा है, सेकंड ईयर एंड में। तो अच्छे से मेरे कोर सब्जेक्ट कॉलेज में तो नहीं हुए थे और जब हुँ, सीज़न आया तो मैंने सिंपली जो ओप्स तो आता था यार, ओप्स तो मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं करने में, ओप्स अच्छे से हाँ, फिर ओएस और डीबीएमएस के लिए जो चीज़ है, तो एक 4 आवर की दोनों की वीडियो है, अगर आप जाओ तो लव अकबर भैया के चैनल पे। हाँ, प्लेलिस्ट, यस। एक प्लेलिस्ट लंबी वाली भी है और दूसरी शॉर्ट वाली। हुँ, तो जो शॉर्ट अच्छा, वन शॉट, हाँ, हाँ, शॉर्ट एक प्रॉपर एकदम एकदम वन शॉट भी नहीं, बट आई थिंक 4 आवर्स की हुँ। थी। एग्ज़ैक्टली यार मेरे को लव अकबर भैया की थी या किसकी थी मेरे को नहीं याद आ रहा। करोगे ना तो आपको हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन मैं में। बता दूँ, मैंने वो सेव कर रखी है। मैं ढूँढ के हाँ, आपको वो 4 आवर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ 4 आवर्स अराउंड में ही डीबीएमएस के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पूरे उससे कवर थे। तो मैंने वो दोनों वीडियोज़ हुँ, 1-1 दिन लगा के मतलब 2 दिन लगा के पूरे अच्छे से खत्म की थी और उसके बाद सीधा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स जो होता है स्ट्राइवर उनकी एसडी कोर शीट करके भी एक अलग है, वो सारे और इंटरव्यू बीट के शीट हाँ, ऑपरेटिंग हुँ, इंटरव्यू बिट क्वेश्चन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस इंटरव्यू बिट के क्वेश्चन्स, ये अच्छे से कर हुँ, कोर में इतना ही किया था और आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा पूछते भी है कोर में कोई कंपनी फ्रेशर हो। हुँ, और थोड़ा मेरे पास फ्री टाइम बचा था, तो सिस्टम डिज़ाइन मतलब हमारे सीनियर्स जो थे ना, उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से बना के भेजी थी। लो लेवल डिज़ाइन पूरी हुँ, तो नहीं की, बट अगेन वो थोड़ा-थोड़ा मैंने फ्लेक्स का कुछ-कुछ वीडियोज़ देखे थे। कौन थे मैं एक कोई है ना फेमस आपको मुझे ना ए से नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनकी मैंने प्लेलिस्ट के कुछ-कुछ वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पे, सबसे फेमस वही है। वो बोर्ड पे पूरा ड्रॉ कर के समझाते हैं। फिर अमर्त्य सेन शायद नहीं ये तो किसी और का नाम ले लिया मैंने इकोनॉमिस्ट है ये तो शायद मैं भेज दूँगा चलो वो प्लेलिस्ट के लिंक। हाँ, उनके प्लेलिस्ट से वीडियोज़ थोड़े देखे थे और फिर इंटरव्यू बिट पे आप जाओगे ना, तो उबर का सिस्टम डिज़ाइन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन और यूआरएल शॉर्टनर का भी एक्सप्लेन्ड है। पूरा अलग से है ही कि आपको इंटरव्यूअर क्या पूछे तो आपको कैसे बताना है, तो वो भी मैंने किया हुँ, था। वैसे मेरे को किसी ने पूछा नहीं, बट आई थिंक अगर आपने ये कर लिया हो यू वर रेडी। हाँ, हुँ, आपने कर लिया हो ना तो आप नॉर्मल चीज़ों में भी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हुए ये बता सकते हो कि आई मेड हुँ, आई लुक्ड इंटो दिस कॉन्सेप्ट कि लेटेंसी कम हो वगैरह, माइक्रो सर्विस मोनोलिथिक क्या होता है, हुँ, ये बेसिक कर रखा था मैंने। हुँ। सही है यार, मतलब प्रीटी मच यू वर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, डीएसए से हैकाथॉन से लेके सिस्टम डिज़ाइन एवरीथिंग, राइट? एक चीज़ तो नहीं की वो सीपी नहीं की थी मतलब मैं तब हैकाथॉन्स करता था तो फिर वही है कि अब दोनों तो कुछ लोग कर लेते हैं नहीं वो हो बात नहीं सकता। बट उस टाइम मेरे से नहीं हो पाया था, तो फिर हैकाथॉन्स अच्छे से कर लिए थे, चल रहा था उसमें। हाँ, बाकी अगर एंड हैकाथॉन कर लिया तो सीपी की ज़रूरत भी नहीं है यार, हाँ, है ना? वही बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो और सीपी आप कर लो, तो उससे बेटर तो कुछ नहीं मतलब सीपी जिसको आती हो एज़ अ फ्रेशर, उसको तो काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल ही हुँ, जाते हैं। मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अच्छे से सीपी की थी, जो एक्सपर्ट या फिर कैंडिडेट मास्टर थे, उनकी बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट लगी ही है सबकी। हुँ। इनफैक्ट मैक्सिमम कैंडिडेट मास्टर मास्टर तक जो पहुँच जाते हैं, वो तो गूगल वगैरह टाइप की कंपनी में उनका हो ही जाता कैंडिडेट मास्टर है में ना? तो बोलूँगा काफ़ी बड़ी बात ही है। हाँ, हाँ, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाता है सीपी में भी, है ना? यस। राइट मैन, राइट। सो यू नो, ऑन अ फाइनल नोट, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी कोई अच्छी कंपनी क्रैक करनी है कल्ट फिट टाइप की, तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम, यू नो, ऑन अ फाइनल नोट? बिल्कुल, बिल्कुल। कल्टवेट देखो ऑन कैंपस भी हायर करती है बट कल्टवेट लेवल की कोई भी कंपनी कर रही हो तो बेस्ट वे इज़ ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस मेरे को एकदम से नहीं मिल हुँ, गई थी। मतलब थोड़ा बता दूँ तो हुँ, लिंक्डइन वगैरह पे बहुत सारी आती थी। जैसे जुपिटर मनी का भी आई थी ओपनिंग, फिर कल्टफिट की आई थी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ की आई थी। तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया हुँ, तब जाके यहाँ एक का ऑफर आया था मेरे पास ऑफ कैंपस। तो थोड़ा अच्छे से उसमें टाइम लगता है। तो उससे बेटर है अगर ऑन कैंपस आती है आपके वहाँ
तो एकदम सीजीपीए हाई रखो, ओए अच्छे से क्लियर कर लो, फिर तो इंटरव्यू निकल ही जाना है। अगर डीएसए किया, मैं बेस्ट तो वही बोलूँगा, ऑन कैंपस डीएसए। कैंपस सीजीपीए अच्छा रखो और निकाल लो ऑफर। बाकी इन केस ये ना, तो ऑफ कैंपस फिर तो या तो बहुत अच्छे सीपी में हो, या फिर एज अ फ्रेशर बहुत अच्छे सीपी में हो, या फिर बहुत अच्छे हैकेथॉन्स, या फिर अच्छे एकदम तगड़े जिसमें प्रॉपर यूजर हो, लाइव यूजर हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रखे। और या फिर किसी अच्छे स्टार्टअप में काम किया हो इंटर्न। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनकी 6 मंथ इंटर्न लगी थी एक कंपनी में, वो उनको पहले दे दिया था फुल टाइम ऑफर, बट रिवोक किया, तो दे के रिवोक किया। बट स्टिल, हाँ और क्योंकि उन्होंने अच्छे से काम किया था उस कंपनी में 4 महीने 5 महीने एज एन इंटर्न, तो उनका रेज्यूमे इतना अच्छा बिल्ड हो गया ना, कि उनकी फिर ऐसा मान लो कि 18 प्लस बेस की ही 4 लोग थे, चारों की 18 प्लस कंपनी में ही लग गई है। तो ये जल्दी, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, या तो खुद का ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिस पे लाइव यूजर हो, या तो ऐसी अच्छी कंपनी में काम करो जिसका टेक स्टैक बहुत प्यारा हो, जिसकी वजह से आपका रेज्यूमे एकदम एलिवेट हो जाए। इनिशियली अगर up हो जाए, yes. थोड़ा कम स्टाइपेंड पे भी काम करना पड़े, सो डोंट माइंड इट, राइट? थोड़ा ईगो पे मत ले लो, क्योंकि इन्होंने भी किया तो उनको थोड़े टाइम बाद तो अच्छे बेस पे मिल ही गई थी ना ऑफर। सो थोड़ा करना पड़े तो कर लो, तुम्हारा रेज्यूमे बिल्ड हो गया। रियल वर्ल्ड एक्चुअल, जैसे फेक, कुछ लोग तो फेक डाल देते, वो नहीं, रियल वर्ल्ड प्रॉपर डाल, तो हो ही जाएगा आपका कहीं ना कहीं। Hmm. Right. Okay, that was some great advice. Okay, so I guess that pretty much covers everything about cracking a company like Cultfit and Dhruvil's journey to cracking Cultfit. So thanks a lot, man, for coming on my channel, sharing your journey. I hope it'll help a lot of students. If someone still wants to like communicate with him or learn something from him, I'll give his LinkedIn in the description. You guys can follow him from there and connect with him from there. So yeah, thank you. Yeah, thank you.